things and that I think is helpful in all domains. With this, I'd like to wish a very warm and pleasant evening to everyone present here. Today, I, Anushka, And Avtarsh. on behalf of EduTech, are here with you on day three of this exciting workshop on understanding BSc. So without further ado, let's dive into this evening and let's see what we have on today's agenda. We shall commence today's session with a brief about hash maps in DSA, their uses and importance. Further, we shall trace report in DSA, algorithm and their necessity. And lastly, we shall wrap this workshop with learning about graphs and their importance. Like previous 2 days, we'd also be taking up questions post the session in the next half of the webinar. So make sure to drop the questions in the chat box or raise hands. We'll unmute you so that you can ask your questions directly. Once we're done getting all your queries answered by the speaker, we shall move on to something even more exciting, the fun and informative quiz for you guys that we have been having at the end of every day of this 3 day workshop. Only for you to evaluate how much you have learned during each session. So don't forget to attempt the quiz. We also have exciting prizes in store for you guys. I would also request the attendees to stay till the end as the feedback form link and the attendance link will be shared at the end of the sessions to send out the certificates. On the basis of the responses we get from these two forms, the quiz response at the end, and the attendance that we capture manually, we shall be sending out the certificates. So without wasting any more time, let's introduce our today's speaker, our very own Shivam Singh, who is present at a trainee software engineer in UST Bluecom Technologies. He is still in web development, Python, and C++ as well. He also enjoys coding on websites like LeetCode and HackerRank. We welcome you, Shivam, sir. Yeah, hi everyone. I'm glad you gave me this opportunity. So let's start without making this a very hasty thing. Let me share my screen. Mm, okay, is it visible now? Yeah, it's visible. So today we are gonna see first hash map. So hash map is a data structure where the values are stored in key value. So there is a key and then there is the corresponding value to it. Okay, so here it is shown that we can we can store any value in key and any value here, whether it is an integer, boolean, string, any kind of data type. So there are two kind of maps basically in C++. One is ordered map and another one is unordered map. And ordered map, it is implemented using binary search tree, and the unordered map is implemented using hash table. So what's the difference between two is that as you all know that in binary search the time complexity is order of log n. So in the same way, uh, in the ordered map, as it is implemented using binary search tree, so the average time complexity of the operations such as search, insertion, and deletion, it will be log of n. And while in the case of unordered map, as it is implemented using hash table, so the time complexity in operations such as search, deletion, insertion, and deletion, it will be order of one. So it is much better to use unordered map. Now we can see some use cases. We can use unordered map when we just want to keep count of some data. For example, we want to check for a string and how much time it comes in a sentence. For example, if we want to search for example, we want to search hi and number of times it has occurred in a sentence, and we don't need to traverse it. And Excuse me. Sorry to interrupt you, Bhaiya. Just wanted to share some of the students are requesting you to just speak in Hindi as well so that they might be comfortable with everything. okay, excuse me. All right. So I'm sorry, we shall repeat this. So
एक तो मैप होता है, एक अनऑर्डर्ड मैप होता है, राइट? सो जो मैप डेटा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा BST से इम्प्लीमेंट होता है, बाइनरी सर्च ट्री से। और बाइनरी सर्च ट्री एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होती है वो लॉग ऑफ एन में चलती है, ठीक है? लॉग ऑफ एन का उसका रनिंग टाइम होता है, तो उसके जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो उनका एवरेज टाइम लॉग ऑफ एन होगा। एंड जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप होता है, अनऑर्डर्ड मैप हमारा बेसिकली हैश टेबल से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। सो उसमें हमारे जितने भी हमारे ऑपरेशंस होंगे, सर्च, इंसर्शन, डिलीशन, वो सारे ऑर्डर ऑफ वन में होंगे, वेरी फास्ट। सो हमारा जो अनऑर्डर्ड मैप है उसको हम जनरली तब यूज करते हैं अगर आपको ऐसा कुछ चेक करना है कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर एक एरे में हमें ये चेक करना है कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है पर हम 2 बार लूप नहीं लगाना चाहते, और एंड हमको ट्रेवर्सल नहीं करना बेसिकली। एंड इन केस ऑफ ordered map, where we need ordered data, and where we need to access the data in some order. For example, uh, if we have some kind of data which is already sorted, then we can use normal ordered map. So let me show this to you. Hmm. ये विजिबल है ठीक से कोड? Yes, Bhaiya, it's visible. Yes, yes. सो ये हमारा ऑर्डर्ड मैप है। इसको हम ऐसे इंक्लूड करते हैं, STD आपको लिखना होगा सबसे पहले, देन आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद आपको मैप लिखना होगा, और उसके बाद ये एक्चुअली एक टेम्पलेट से क्रिएट किया होता है, इसलिए हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो की वैल्यू पेयर है उनका डेटा टाइप क्या है। तो हम डेटा टाइप बताएंगे, उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे जो हमारा मैप है। तो जनरली जो हमारे दोनों हैश मैप्स होते हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड दोनों, वो दोनों एक पेयर क्लास होती है C++ में, उससे इंप्लीमेंट करे होते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। सो उसके अंदर जो भी हम स्टोर करेंगे ना वो पेयर क्लास से स्टोर होगा। तो पेयर क्लास में हमारी ऐसे बनती है, हम ऐसे लिख सकते हैं पेयर, एंड उसके बाद अब पेयर भी टेम्पलेट से बना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको दो इंटीजर्स का वो बनाना है की वैल्यू पेयर, तो हम इंट कॉमा इंट लिख देंगे, और उसके बाद हमारा पेयर का एक नाम आएगा, पी आ गया। तो अब ये तो हमारा एक पेयर नॉर्मल क्रिएट हो गया, बट हमें फिर इसके अंदर डेटा स्टोर करना होगा। तो इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए फिर हम पी डॉट फर्स्ट होता है एक, फर्स्ट मतलब उसका उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ही पी डॉट सेकेंड होता है, तो हम इसको भी चेंज चेंज कर सकते हैं, देन हम इनको एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड से। तो ये तो था पेयर क्लास। देन बेसिकली यहाँ पे जो इंसर्शन है वो जनरली द डिफॉल्ट ऑर्डर जो होता है इंसर्शन का ऑर्डर्ड मैप में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। सो अगर हमारी जो कीज हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले रखा है 5, 3, 20 और 1, ये हमारी कीज हैं, और इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैंने डाली हुई हैं 5, 10, 500 एंड 1। सो जब हम इनको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे तो हम रैंडमली इंसर्ट कर रहे हैं, पर वो अंदर मेमोरी में, वो मेमोरी में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर होगा। सबसे पहले 1 स्टोर होगा, that is not showing here. Wait a second, let me put this. Mm, yes. तो बेसिकली ऑर्डर्ड मैप में इंटरनली चाहे हम पहले जैसे भी कोड में हम रैंडमली जैसे भी हम वैल्यू स्टोर करें, पर इंटरनली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर होगा। तो यहाँ पे अगर हम 5, 3, 20 और 1 हम ऐसे स्टोर करा रहे हैं, इसके अंदर 10 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 1 है। ये तो हमारी वैल्यूज हो गई, ये हमारी की हो गई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ की में स्टोर होगा, तो इंटरनली ये 1, 3, 5 और 20 स्टोर होगा। तो अगर हम इनको प्रिंट कराएंगे तो इनका डिफॉल्ट ऑर्डर ऐसे ही आएगा। और जो हमारा ये
नॉर्मल मैप होता है, इसको प्रिंट कराने के लिए हमको एक आइटरेटर होता है C++ में, वो यूज करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे हमने आइटरेटर यूज किया है। तो इसको यूज करने के लिए हम फॉर लूप के अंदर एक डिफरेंट डेटा टाइप होता है ऑटो। ऑटो में वो खुद डिटरमाइन कर लेगा कि जो भी हमारा डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने हमारा जो पेयर यहाँ पे तो हम पेयर बना के भेज रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम सर्टेन नहीं है कि कौन सा डेटा टाइप होगा, यहाँ पे वो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑटो लिखते हैं। और देन ऑर्डर ऑर्डर हमारा ये मैप है, मैप नेम डॉट बिगिन। बिगिन हमारा जो हमारा मैप है उसकी स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरनली तो ऐसे स्टोर हो रहा है, तो बिगिन यहाँ पे आएगा और एंड यहाँ पे आएगा। तो हम बिगिन से लेके जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक जाएंगे, और हम फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करके प्रिंट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। जो ये फर्स्ट होती है इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी सेकंड वैल्यू सेकंड होती है, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो इस ये हमारा इसकी जब हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, मैं दिखा देता हूँ चला के कोड। तो हमारी ऐसे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारी सारी सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो रही है, जो डिफॉल्ट ऑर्डर होता है। हमारा अनऑर्डर्ड मैप ये थोड़ा डिफरेंट वर्क करेगा। अनऑर्डर्ड मैप में बेसिकली कोई ऑर्डर नहीं होता जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, उसमें रैंडम ऑर्डर होता है। तो उसका उसका जो तरीका होता है उसको क्रिएट करने का, उसमें अनऑर्डर्ड मैप। और ये भी जैसे टेम्पलेट से बनाया, तो यहाँ पे पहले हमको की और वैल्यू का हमें वो बताना पड़ेगा डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग और इंटीजर का बना रहा हूँ की वैल्यू पेयर, और मैंने इसका नाम माई मैप दे दिया। तो इस अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्ट करने के ना दो तीन तरीके होते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पेयर बताया था, हम एक पेयर क्लास क्रिएट कर सकते हैं और पेयर, और मैंने यहाँ पे भी दे, क्योंकि हमने यहाँ पे बता रखा है ना हमको स्ट्रिंग और इंटीजर का बनाना है, तो मैं एक पेयर बनाऊंगा स्ट्रिंग और इंटीजर का, उसका नाम दे देंगे, और यहाँ पे हम पेयर क्लास का जो है उसका कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। तो फिर हमको खुद से जाके फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू सेट नहीं करनी पड़ेगी, हम कंस्ट्रक्टर में ही सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो एबीसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा है, और सेकंड वैल्यू हमारी इंटीजर रहेगी। तो एबीसी के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। और फिर हम जो ये हमारा एक पी पेयर बना है, हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं इस मैप में डॉट इंसर्ट फंक्शन से। पर अब अगर हमको ये नहीं करना, तो हम इसको एरे की तरह भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट से, कि जो हमारा जो मैप का नाम है और उसमें हम जो हमारी वैल्यू की है, की को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और उसके इक्वल टू में हम उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, अब अगर उससे क्या होगा, उससे दो चीजें हो सकती हैं। अब सपोज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको सर्च करना है, सपोज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ मैप, तो अगर हमारी वो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर दे देगा। पर अगर हम इस वाले मेथड से क्रिएट करेंगे, तो फिर अगर हम एस डी एफ के लिए सर्च करते हैं, तो फिर वो ऑलरेडी क्रिएट कर देगा। मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे माई मैप अगर मैं माई मैप की वैल्यू एबीसी के लिए प्रिंट करता हूँ, तो फिर ये एबीसी में मैंने 1 सेट किया है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। और एक एक फंक्शन होता है इसमें माई मैप डॉट एट भी हमारा ये चेक करता है कि जो भी हमने वहाँ पे की हमने जो यहाँ पे की हमने यहाँ पे जो की प्लेस की है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करेगा है या नहीं है। अब अगर एट वाले फंक्शन में जो भी हमने की हमने भेजी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, तो ही वो फिर हमें आउटपुट लाके देगा, वरना वो एरर दे देगा डायरेक्ट। पर इस अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, वो एरर नहीं देगा। अगर इस एबीसी की कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, तो फिर वो यहाँ पे क्रिएट कर देता है एक वैल्यू जो डिफॉल्ट, और जो एबीसी के कोरस्पॉन्डिंग वो ऐसे क्रिएट कर देता है एबीसी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफॉल्ट वैल्यू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है। तो एक और हमारा फंक्शन होता है अनऑर्डर्ड मैप में काउंट। काउंट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और हमारा जो एक मैप होता है उसमें कोई भी वैल्यू होती है वो एक एक ही बार एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब जैसे यहाँ पे हमने 5 के कोरस्पॉन्डिंग 10 लिया है, तो यहाँ पे 5 के कोरस्पॉन्डिंग 10 ऐसे एक और एंट्री नहीं आ सकती 5 10, एक ही बार आएगी 5 10। तो अब जो हमारा काउंट काउंट फंक्शन है, ये हमें या तो 0 लाके देगा या तो 1 लाके देगा। अगर ये 0 लाके दे रहा है, तो मतलब जो करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे की भेजी है उस वो एग्जिस्ट नहीं करती। पर अगर 1 लाके दे रहा है तो मतलब एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि माई मैप डॉट काउंट
ABC जो हमारी की वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, सो अगर ग्रेटर देन 0, सो अगर 0 से बड़ा 1 आया तो फिर मतलब हमारा एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, तो फिर ये प्रिंट कर देगा। एक फंक्शन होता है अगर साइज, उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा करंट हैश मैप का साइज कितना है। एंड ये तो सिंपल सा ये फंक्शन, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। एक हमारा फंक्शन है इरेज, इसमें हमें की वैल्यू पास करनी होगी और वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग पूरी एंट्री डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे बनाया हुआ है ABC1, तो फिर वो ABC और इस पूरी एंट्री को डिलीट कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ ABC को डिलीट करे या फिर वो 1 को डिलीट करे। अगर हमें उसमें यहाँ पे हमें की डालनी होती है और वो की वैल्यू दोनों के पूरे पेयर को डिलीट करता है। तो मैं कोड रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो इसमें आउटपुट दे दिया। सबसे पहले तो हमने ABC के कोरिस्पॉन्डिंग 1 इंसर्ट किया था, तो फिर और DF के कोरिस्पॉन्डिंग हमने 2 इंसर्ट किया था, और हमने फिर यहाँ पे ABC की वैल्यू प्रिंट करती थी और DEF की वैल्यू प्रिंट करी थी, इसलिए 1 और 2 आया। उसके बाद हमने चेक किया कि ABC के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारा काउंट है वो 0 से बड़ा है या नहीं, और ऑब्वियसली ABC हमने अभी इंसर्ट किया तो वैल्यू 1 आएगी, तो हमारा ABC एग्जिस्ट प्रिंट हो गया यहाँ पे। और फिर हमने साइज चेक किया तो 2 आ गया, और फिर हमने ABC को रिमूव कर दिया तो फिर साइज चेक किया तो साइज 1 आ गया। तो ये सिंपल है काफी। बाकी जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और ऐसी चीज़ों में जहाँ पे अगर आपको डेटा स्टोर करना है और आपको डेटा की डायरेक्ट आपको वैल्यू चाहिए, तो उस चीज़ में अनऑर्डर्ड मैप काफ़ी काम आता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। बाकी और तो मैं इसमें कुछ नहीं है खास, तो बाइनरी ट्री पे मूव करते हैं। ट्री ट्री डेटा स्ट्रक्चर है हमारे, बाइनरी ट्रीज, जेनेरिक ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्रीज। हमारा एक ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रीज में क्या होता है कि एक ऐसे एक रूट होगी और उसके डिफरेंट चिल्ड्रन होंगे, और उनका उनके उनके भी और चिल्ड्रन होंगे, तो मतलब ये एक सब ट्री हो गया। तो एक ट्री के मतलब चिल्ड्रन होंगे, और चिल्ड्रन का खुद से एक सब ट्री फॉर्म हो रहा होगा। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके। तो फिर एक तो बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी ट्री में जनरली हमारे एट मोस्ट एक नोड के 2 या 2 से कम ही होंगे, जो जो हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे 2 ही हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 के 2 हैं और 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे 2 के भी 2 हैं, पर ना भी हो तो चलेगा, जैसे इसका कोई भी नहीं है। मतलब इट शुड बी लेस देन और या फिर इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। और यहाँ पे जनरली जब हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा नहीं होते, तो इसलिए हमें स्टोर करने के लिए कोई वेक्टर या एरे नहीं लेना पड़ता, हम सिर्फ पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ इसका कोड भी, क्लास दिखा देता हूँ इसकी। सो ये क्लास मैंने टेम्पलेट से बनाई हुई है। टेम्पलेट से इसलिए बनाई है ताकि इसमें हम चाहे तो स्ट्रिंग का डेटा डाल दें या फिर कैरेक्टर का डेटा डाल दें, इतना कोई फर्क नहीं आएगा नॉर्मल में और इसमें। तो क्लास का नाम बाइनरी ट्री नोड है, और इसमें जो मैंने डेटा इंसर्ट किया है वो मैंने ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर में किया है। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी भी मैं क्लास बता देता हूँ। इसमें हमने इसके 3 डेटा मेंबर हैं। एक तो जो डेटा है यहाँ पे, अब मैंने टी डेटा इससे लिखा है क्योंकि ये टेम्पलेट से बना है, वरना मैं इंट डेटा लिख देता अगर ये इंटीजर से बनता। और हमारा एक जो ये तो रूट के लिए है बेसिकली। मैं इसमें सेकेंड, सो ये अगर हमारी रूट है तो फिर इसके लिए हमें, ये बाइनरी ट्री है तो इसके 2 चिल्ड्रन होंगे, तो रूट का तो एक डेटा होगा जो भी यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, और हमारे रूट को 2 चीजें चाहिए, इन दोनों के लिए पॉइंटर चाहिए।
इन दोनों का एड्रेस, जो इसके लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड है। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंटर ले लेंगे, और जो पॉइंटर का टाइप होगा वो, बिकॉज ये दोनों भी एक नोड है, तो वो इसी टाइप का होगा जिस टाइप की हमारी क्लास है। बाकी ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में यूजर जब इनपुट कराएगा तो फिर वो जो डेटा पास करेगा वो डेटा इसमें आ जाएगा, इनके डेटा में स्टोर हो जाएगा, और इसके लेफ्ट और राइट वैल्यू पे नल आ जाएगा, क्योंकि हम पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा ट्री है उसका साइज 1 है, उसमें सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है और ये दोनों इनके एग्जिस्ट नहीं करते, इस हिसाब से क्लास बनाई हुई है। और ये ट्री का डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा कि हम लेफ्ट पे और राइट पे कॉल कर देंगे डिलीट, तो वो लेफ्ट ट्री को डिलीट कर देगा, राइट ट्री को डिलीट कर देगा, और एंडिंग में वो खुद को डिलीट कर देगा। ये ऐसे काम करेगा रिकर्जन से। बाकी मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है जिससे हम ट्री को लेवल वाइज प्रिंट कर सकते हैं। पहले मैं इनपुट वाला दिखा देता हूँ, इनपुट कैसे लेना है ट्री के अंदर। तो ये हमारा एक फंक्शन है, टेक इनपुट लेवल वाइज। ये हमारा हमारा ये जो फंक्शन है ये हमें हमें लेवल वाइज इनपुट करवाएगा। जैसे अगर हमारा ये ट्री है 1 2 3 4 5, तो हमें ऐसे लेवल वाइज लेना है, 1 फिर 2 फिर 3 4 5। हम इनपुट रिकर्जन से नहीं लेना चाहते, हम इनपुट जो है हम लेवल वाइज लेना चाहते हैं। पहले ये लेवल कंप्लीट होगा, फिर ये लेवल कंप्लीट होगा, फिर ये लेवल कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हमें क्यू यूज करनी पड़ती है। बेसिकली इस लेवल वाइज जो हमारा ये वाला तरीका होता है, इसको हम पहले ब्रेथ, पूरी की पूरी जो हमारी ब्रेथ है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसे हम ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल बोलते हैं। तो यही हमने मेथड यूज किया है। इसमें हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो यूज करना होता है। तो ये कोड है हमारा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चल कैसे रहा है। हमने यहाँ पे क्यू ले रखी है, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि हमें यही ट्री इनपुट कराना है, तो सबसे पहले हम इसमें 1 डाल देंगे जो हमारी रूट है। 1 डालने के बाद हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक हमारी जो ये क्यू है ये एम्प्टी नहीं हो जाती। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले 1 डाला था जो रूट से, हम इसको बाहर निकालेंगे और हम इससे पूछेंगे कि इसके कितने चिल्ड्रन है। तो ये बोलेगा 2 और 3 है, तो हम इनको इनको भी क्यू के अंदर डाल देंगे 2 3। और फिर हम 2 को बाहर निकालेंगे सिमिलर वे में, हम 2 से पूछेंगे कि 2 के कितने चिल्ड्रन है, वो 4 5 बोलेगा, तो हम 4 5 को एंटर करा देंगे। और उसी वे में हम 3 के चिल्ड्रन पूछेंगे, और फिर हम 3 के चिल्ड्रन कोई नहीं है तो कुछ भी एंटर नहीं होगा। तो इसी वे में हमने किया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्यू बनाई है, और इस क्यू का जो टाइप है, ये क्यू भी हमारी टेम्पलेट से बनी होती है इंटरनली, तो फिर इसका जो टाइप है हमें बाइनरी ट्री की जो क्लास है उसी टाइप की हमें डालने हैं, तो इसलिए बाइनरी ट्री नोड ये हमने लिखा है इंटीजर। और ये जो हमारी बाइनरी ट्री नोड है ये हमारी उससे बनी है टेम्पलेट से, तो इसलिए इसके अंदर इंट लिखा हुआ है, और ये पॉइंटर है तो यहाँ पे इसलिए स्टार लगाया है। क्यू का नाम हमारा पेंडिंग नोड्स है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे रूट पुश कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, हमने यहाँ पे रूट पुश किया था, सबसे पहले रूट पुश कर दिया, और फिर हमने तब तक लूप चलाया वाइल हमारा इसका साइज 0 नहीं हो जाता। और सबसे पहले हमने जो हमारे क्यू के सबसे सामने रखा हुआ था फ्रंट पे, हमने उसको बाहर निकाल लिया, तो हमने 1 को बाहर निकाल लिया, और फिर हमने पॉप कर दिया उसको, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया 1। उसके बाद हमने इनपुट लिया लेफ्ट चाइल्ड का डेटा, और यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा यूजर है वो -1 तभी इनपुट करेगा अगर उसको कुछ मतलब उसको कोई चाइल्ड नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 के कोई चाइल्ड नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए -1 और -1 दोनों में इनपुट करा देंगे, तो जब भी -1 आएगा हम रिटर्न नल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ लेफ्ट चाइल्ड डेटा नॉट इक्वल टू -1 इनपुट लेने के बाद, अगर -1 नहीं है तो ऑब्वियसली यूजर हमारा इनपुट कराना चाह रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक नई बाइनरी ट्री नोड बनाएंगे, और उसमें डेटा में लेफ्ट चाइल्ड डेटा डाल देंगे, और हम उसको जो भी हमारे फ्रंट में था, फ्रंट में हमने ये निकाला था 1, इसके हम लेफ्ट में डाल देंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड। और अब इसके जो हमने लेफ्ट चाइल्ड इनपुट कराया था, हम इसको क्यू में भी डाल देंगे, तो हमने इसको क्यू में भी डाल दिया 2 को। और इन द सेम वे हम राइट चाइल्ड डेटा इनपुट कराएंगे, और अगर वो -1 नहीं है तो मतलब यूजर राइट चाइल्ड का डेटा भी डालना चाहता है अंदर, तो फिर हम एक नई नोड बनाएंगे, और उसको जो हमारी करंट नोड है, ये जो फ्रंट नोड है हमारी अभी करंटली हमारी जो फ्रंट नोड है वो 1 है, तो हमने 2 को तो जोड़ दिया, अब हम 3 को भी जोड़ देंगे इससे, और फिर हम 3 को भी हम क्यू में डाल देंगे, इसलिए हमने पेंडिंग नोड्स डॉट पुश राइट चाइल्ड लिखा हुआ है, तो हमने 3 को भी हमने डाल दिया। अब 1 तो निकल चुका ऑलरेडी,
अब क्यू हमारी खाली नहीं है, अभी हमारी क्यू में 2 3 4 5 है। तो उसके बाद क्या होगा, ये लूप दोबारा चलेगा, ये लूप हम दोबारा इधर आएंगे। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारी क्यू एम्प्टी है नहीं। अब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर हम दोबारा जो क्यू में फ्रंट है वो बाहर निकाल लेंगे, और हमारी क्यू में 2 रखा हुआ है आगे, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया, 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 हट गया हमारा, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया। और उसके बाद हम 2 के चिल्ड्रन पूछेंगे, 2 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं। अभी हमारा 2 के हम चिल्ड्रन पूछेंगे, तो फिर 2 4 और 5 इनपुट करेगा। तो यहाँ पे अब हम इन 4 और 5 इनपुट कर रहे हैं, तो -1 तो इनपुट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अंदर आएंगे और एक लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे विद इनपुट विद डेटा ऑफ 4। और फिर हम उसको हमारा जो 2 है, जो 2 हमारा फ्रंट नोड है, इसके लेफ्ट में डाल देंगे। और इसी सेम मैनर में हम राइट चाइल्ड डेटा बनाएंगे दोबारा। और हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो -1 नहीं ले रहे, तो हम इसको एक नई नोड बनाने के बाद इसको 2 के राइट में डाल देंगे। यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, और इन दोनों को जब हम पुश कर रहे होंगे तो हम इनको क्यू के अंदर भी डाल देंगे 4 और 5। और इन द देन लूप दोबारा रन करेगा, और फिर हम 3 के चिल्ड्रन पूछेंगे। अभी 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 कंप्लीट हो चुका है, अब हमें 3 के चिल्ड्रन पूछने हैं। तो हम 3 को क्यू से बाहर निकालेंगे। अब हमारा जो फ्रंट है, जो हम जो ये फ्रंट है बाइनरी ट्री नोड इन स्टार फ्रंट, तो ये अब हमारा 3 हो चुका है, क्योंकि हमने 3 को बाहर निकाला है। अब हम 3 के चिल्ड्रन पूछेंगे, पर 3 में बिकॉज हमको कोई चिल्ड्रन नहीं चाहिए, तो हम 3 में दोनों टाइम -1 दे देंगे, दोनों टाइम -1 दे देंगे। तो फिर वो इनपुट लेगा ही नहीं, वो इनपुट नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं होगा, बस इनपुट लेगा नहीं वो। और इनपुट नहीं लेगा तो सिर्फ जो हमारी 3 की जो नोड क्रिएट हुई थी यहाँ पे, जो हमने यहाँ से नोड क्रिएट की थी, यहाँ से इस वाली लाइन से राइट चाइल्ड जो हमने बनाया था 2 का, 1 का जो राइट चाइल्ड बनाया था, तो अब जब हम राइट चाइल्ड बना रहे थे तो हमने कंस्ट्रक्टर में लेफ्ट और राइट में ऑलरेडी नल डाल दिया था। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे हमने -1 लिया है, तो हमारा ऑलरेडी 3 के लेफ्ट और राइट में नल नोड आ चुकी है, ऑलरेडी नल आ चुका है ऑलरेडी, तो हमें खुद से डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्टर काफी यूजफुल होता है। तो इन द सेम वे हम 4 को बाहर निकालेंगे, और 4 में भी -1 डाल देंगे, इनपुट करा देंगे, और 4 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं होंगे। इन द सेम वे 5 को भी बाहर निकालेंगे, 5 के चिल्ड्रन इनपुट करा देंगे, तो हमारा एंड ऐसे ही सेम इसी तरीके से हमारा पूरा ट्री इनपुट हो जाएगा। और फिर हम रूट को रिटर्न कर देंगे। अभी हमारा जो रूट है यहाँ पे आ जाएगा इधर, और फिर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट भी हमने सेम तरीके से कराया है, लेवल वाइज, और इसमें भी हमने क्यू यूज करी है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। प्रिंट भी काफ़ी इजी है। प्रिंट में भी हम एक क्यू ले लेंगे, और 1 2 3 4 5। सपोज ये हमारा ट्री है, तो सबसे पहले हम अपने रूट को पुश कर देंगे। इसमें हमें रूट ऑलरेडी मिला होगा, क्योंकि हमको प्रिंट करना है तो हमें रूट दे रखा होगा। तो फिर हम लेवल वाइज प्रिंट कर रहे हैं, ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल कर रहे हैं हम, तो हम ऐसे जाएंगे 1 फिर 2 3 फिर 4 5, एक हर लेवल एक बारी में कंप्लीट होगा हमारा। तो फिर हम इसमें सबसे पहले रूट को पुश कर देंगे। रूट को पुश करने के बाद हम ये तब तक चलाएंगे जब तक हमारी ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो हमने लिखा है while pending nodes dot size not equal to null। तो हम उसके बाद जो हमारी क्यू में सबसे पहले रखा हुआ है हम उसको बाहर निकालेंगे, इसलिए हमने पेंडिंग नोड्स डॉट फ्रंट यहाँ पे लिखा है। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया 1 को। तो 1 को बाहर निकालने के बाद हमने जो जो भी हमारा फ्रंट का डेटा था उसको प्रिंट कर दिया। तो हमने 1 ऐसे प्रिंट होएगा ये, और फिर हमने इसको पॉप कर दिया, तो फिर हमारी 1 जो है ये क्यू से चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अब हम चेक करेंगे। अब अब हम चेक अभी अगर हम एक करंट नोड पे हैं, तो हम नल का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। हम नल और इसके यहाँ पे नल एंड डेटा ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें एरर आ जाएगा। हम नल की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारी कोई नोड है वो नल है या नहीं है। इसलिए हमने चेक किया है कि जो हमने करंट अभी नोड निकाली है उसकी लेफ्ट साइड और उसकी राइट साइड पे नल नहीं रखा हुआ। अगर नहीं रखा हुआ तो फिर हम उसकी वैल्यूज को भी प्रिंट कराएंगे। हम ऐसे प्रिंट कराएंगे जो हमारी फ्रंट है
उसके बाद लेफ्ट में उसके है फ्रंट के लेफ्ट का डेटा 2, और फिर कॉमा राइट में r लिखने के बाद हम प्रिंट करेंगे उसके जो राइट में डेटा है 3। ऐसे इस फॉर्मेट में प्रिंट कराया मैंने। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है पहले कि हमारा जो हमारी फॉर अ पर्टिकुलर नोड उसके लेफ्ट और राइट में अगर नल नहीं है तो ही हम उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि अगर फ्रंट का लेफ्ट नल नहीं है तो उसको प्रिंट करा दो, और उसको ही क्यू में भी पुश कर रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 को पुश कर दिया। और फिर अगर हमारा नल है तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमें हमारे बेसिकली लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने लेफ्ट कोलन उसके बाद -1 लिखा है। और सेम वे राइट में इफ फ्रंट राइट नॉट इक्वल टू नल देन हम r कोलन प्रिंट कर देंगे फ्रंट के राइट का डेटा 3, ऐसे r3, और हम 3 को भी पुश कर देंगे। 3 को पुश करने के बाद हम यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट न्यू लाइन। तो हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे और फिर ये लूप दोबारा चलेगा। अब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर 2 हमारा बाहर आएगा यहाँ से, जो फ्रंट की वैल्यू है यहाँ पे 2 बाहर आएगा। हम 2 को प्रिंट करेंगे। 2 को प्रिंट करने के बाद हम फिर 2 की नोड्स चेक करेंगे। अब 2 की नोड्स नल नहीं है तो हमारी 2 की नोड्स भी सेम वे प्रिंट हो जाएंगी, L4 और R5, और हम 4 और 5 को भी क्यू में डाल देंगे। 4 5 2 हमारा निकल गया यहाँ से। और अब हम 3 दोबारा लूप चलेगा और हम 3 के चिल्ड्रन पूछेंगे। अब 3 का कोई भी चाइल्ड नहीं है तो फिर हम यहाँ पे हम इस केस में आ जाएंगे दोनों के एल्स में। अब जो फ्रंट है यहाँ पे इस टाइम पे 3 है तो हम 3 का डेटा तो प्रिंट कर देंगे। 3 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, 3 कोलन यहाँ पे 3 लिखा है हमने फ्रंट का डेटा। उसके बाद हम पॉप कर देंगे तो फिर हमारा क्यू से 3 बाहर आ जाएगा, और हम चेक करेंगे कि 3 का लेफ्ट चाइल्ड है या 3 का लेफ्ट राइट चाइल्ड है। अब दोनों नहीं है, 3 के दोनों नहीं है तो फिर हम ऐसे प्रिंट कर देंगे L-1 और R-1, ये दिखाने के लिए कि मतलब हमारे जो 3 है वो एक नॉर्मल लीफ नोड है, उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो हम अब हमारा हम कोई हमारी पुश हमें पुश नहीं करना फिर, क्योंकि हमारा कोई चाइल्ड नहीं है 3 का। तो 3 भी बाहर आ चुका है। इन द सेम वे हम 4 के लिए करेंगे। 4 का भी कुछ प्रिंट नहीं होगा, 4 का कोई चाइल्ड प्रिंट नहीं होगा, 4 का भी ऐसे ही प्रिंट होगा 4 L-1 R-1, और 5 में भी यही प्रिंट होगा 5 L-1 R-1। मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ एक बार। यार यहाँ पे 0 लिखना था, गलती से नल लिख दिया इधर। अभी हमसे इनपुट मांग रहा है, अब हमें इनपुट लेवल वाइज देना है तो फिर हम इसी सेम मैनर में इनपुट देंगे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हम हाँ, अभी हमसे पहले रूट का डेटा मांगेगा, सीन रूट डेटा, तो हम रूट का डेटा दे देंगे 1। अब रूट का डेटा -1 नहीं है तो मतलब हमारा नल ट्री नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम एक रूट की नोड बनाएंगे और उसको हम क्यू में पुश करेंगे, और हम ये जो मैंने सेम प्रोसीजर बताया था, सेम प्रोसीजर से क्यू लगा के हम ब्रेसवर्ड ट्रेवर्सल से हम करेंगे इनपुट। तो पहले 1 2 3, फिर 2 के चिल्ड्रन पूछेगा 4 5, 5 के पूछेगा -1 -1, अभी 4 5 के पूछेगा -1 -1 -1 -1। अब इसने ट्री प्रिंट कर दिया यहाँ पे हमारा। अब इसने सेम मैनर में प्रिंट किया है 1 L2, मतलब 1 के लेफ्ट में 2 है, 1 के लेफ्ट में 2 है, और R3 1 के राइट में 3 है, 2 के लेफ्ट में 4 है, और 2 के राइट में 5 है, और R के लेफ्ट और राइट में -1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, और 4 के लेफ्ट राइट में -1 है मतलब वो भी लीफ है, और 5 के लेफ्ट राइट में -1 है। तो इसी तरीके से मतलब हमारा ब्रेसवर्ड ट्रेवर्सल होगा।
अब बाइनरी ट्री का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये इसमें काफी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, और रिकर्जन जिनको आता है तो वो तो समझ ही जाएंगे आराम से। तो अगर हम एक नोड की वैल्यू दे रखी है, मान लो x दे रखा है हमको, पहले से दे रखा है हमें, और हमको उस नोड को फाइंड करना है हमारे बाइनरी ट्री में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें हम रिकर्जन लगाएंगे। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये हमारा ट्री दे रखा है और हमें इसमें 5 को सर्च करना है। तो हमें एक्स में 5 दे रखा होगा और हमको रूट दे रखी होगी, हमको ये रूट दे रखी होगी, और अब हमको कोड लिखना है कि हम 5 को सर्च करेंगे। अब हमारा जो ये कोड है ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसको 5 मिल गया, और अगर इसको 5 नहीं मिला तो फिर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली हम इसको रिकर्जन से काफी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हमारी रूट नल है, अगर हमारा रूट नल है, इसका मतलब किसी ने हमको नल ट्री दे दिया, खाली ट्री दे दिया, तो तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब अगर हमारा जो रूट का डेटा है वही अगर हमारा एक्स है, तो हमें अपनी नोड पहले ही मिल गई, पर ऐसा तो है नहीं इस केस में, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम इस एल्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे हम दो रिकर्सिव कॉल्स करते हैं। बेसिकली हम रिकर्जन में क्या करेंगे कि हम लेफ्ट साइड भी कॉल कर देंगे, राइट साइड भी कॉल कर देंगे। और बेसिकली रिकर्जन में क्या होता है जनरली, हम ऐसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चंस को कि ये एक रूट नोड है और यहाँ पे इसका लेफ्ट सब ट्री है, यहाँ पे इसका राइट सब ट्री है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने ये किया है कि रिकर्जन से आंसर मंगाने के लिए हमने लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर दिया, राइट सब ट्री पे कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारा आंसर ले आएगा। तो यहाँ पे हमने हमने कॉल कर दिया इज नोट, ये जो फंक्शन है इज नोट प्रेजेंट, हमने रूट के लेफ्ट पे भी कॉल मार दिया और उसमें हमने एक्स पास कर दिया, और हमने राइट में भी कॉल मार दिया। अब मैंने यहाँ पे और इसलिए लगाया कि अगर मान लो कि जैसे हम इस वाले सब ट्री पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे तो उसको 5 नहीं मिलेगा, अब इस वाली सब ट्री पे भी कॉल होगी, यहाँ पे तो इसको 5 मिल जाएगा। अब इस सब ट्री से आंसर आएगा ट्रू, और इस सब ट्री से आंसर आएगा फॉल्स। तो इन दोनों का जो और है वो ट्रू होगा, इसलिए ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो इस वे में हम काफी इजीली इसमें कर सकते हैं सर्च। अब ये वाला जो मेथड है सर्चिंग का, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इसमें हम रिकर्जन से डेप्थ में सर्च करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार रिमूव करके। डेप्थ फर्स्ट सर्च काफी सही है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो अब BFS तो मैंने बता ही दिया था। अगर हमको मान लीजिए किसी चीज को सर्च करना है फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और हम उसको ब्रेथ वाइज सर्च करना चाहते हैं, तो हम उसको यू सर्च करेंगे इन दिस लेवल। जय राधे। शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। हु इज दिस? शोर आ रहा है काफी। सो अगर हमको किसी भी एलिमेंट को ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना है तो हम पहले एक इसमें लेवल वाइज ट्रेवर्स करते हैं, इसको हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, क्यू लगा के क्यू में पुश करते जाएंगे, और इन दिस ऑर्डर हम जाएंगे। पर हमारा जो डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम इस ऑर्डर में जाते हैं, सबसे सबसे डीपेस्ट हम नोड तक जाएंगे, और उसके बाद हम टर्न लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हमको 5 को सर्च करना है, तो हम एक कॉल, पहले तो हम 1 को चेक करेंगे कि हमारी रूट 5 है या नहीं है। रूट 5 नहीं है तो हम लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करेंगे। अब जब हम लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करेंगे तो पहले लेफ्ट सब ट्री की कॉल खत्म होगी, तब हम यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे। तो हमने लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करी है तो फिर वो यहाँ पे आएगा। अब रिकर्जन के लिए ये रूट बन गई है, जब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे तो रिकर्जन के लिए यू रूट बन गई है, तो चेक करेगा इस पॉइंट पे कि रूट नल है। अब रूट नल तो नहीं है, तो फिर हम एलसिफ में चेक करेंगे क्या रूट का डेटा एक्स है। अब रूट का डेटा 5 तो नहीं है, 2 है, तो हम फिर इस एल्स में जाएंगे और हम दोबारा कॉल करेंगे इसके लेफ्ट पे। इसके लेफ्ट में नल रखा हुआ है, दोनों में लेफ्ट और राइट में, तो फिर जब इसके लेफ्ट पे कॉल होगी तो फिर यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब जब इन दोनों से फॉल्स रिटर्न किया है तो फिर हमारे 2 पूरा जाके फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब जब ये 2 फॉल्स रिटर्न करेगा तो इस वाली सब ट्री की पूरी कॉल कंप्लीट हो गई है, तो फिर हम राइट सब ट्री पे कॉल करेंगे। अब हमारा जो रूट है, अब इसने 2 कॉल किए हैं यहाँ पे,
एक कॉल इसने यहाँ करी है, एक कॉल इसने यहाँ करी है, तो अब ये वाली कॉल फिनिश हो गई, ये वाली कॉल फिनिश हो गई, और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे फॉल्स आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉल्स, हमारा जो 2 है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला आंसर है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मान ले कि फॉल्स आएगा इधर, तो हमारी इस पॉइंट के बाद राइट पे कॉल जाएगी। राइट पे कॉल जाने पे क्या होगा, अब हमारा इस सब ट्री पे कॉल होगी, तो फिर वो अब चेक करेगा कि यही सेम सारी जो सेम कंडीशन है वही दोबारा इसी पे रन होंगी, कि हमारा जो रूट है वो नल है, अब नल तो नहीं है, फिर वो चेक करेगा कि रूट का डेटा x है, रूट का डेटा 5 भी नहीं है। तो अब फॉर दिस सब ट्री अब हम 4 पे कॉल करेंगे, इसके लेफ्ट पे कॉल करेंगे। अब ये इसकी पूरी डेप्थ तक जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे भी एक होता, यहाँ पे भी एक होता, तो लेफ्ट 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 वो जाता रहता जब तक वो सबसे डीपेस्ट लेवल पे नहीं जा सकता, इसलिए इसको डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल बोलते हैं। तो अब वो इसके 4 पे जाएगा, 4 से वो चेक करेगा, तो यहाँ पे भी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर अब जब इसकी सारी कॉल्स खत्म हो जाएंगी और यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा हमारा, तो फिर हम 5 पे, फिर हम इस तरफ कॉल करेंगे और हमें मिल जाएगा, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे यहाँ से ट्रू आएगा, यहाँ से फॉल्स आया, तो हमने और लिखा है, तो इन दोनों का जो और है वो ट्रू होगा, तो यहाँ से भी ट्रू आएगा। अब इन यहाँ इस 2 ने तो फॉल्स रिटर्न किया था, और हमारा जो ये वाला सब ट्री है इसने ट्रू रिटर्न किया है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, तो इन दोनों का जो और है ट्रू है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो 1 यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और जो हमारी रूट नोड है वो ट्रू रिटर्न कर देगी, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। फिर चेक कर सकते हैं इसका काफी आराम से। trees plus plus and a node. अभी हमसे ट्री का इनपुट मांगेगा ये, तो हमें पहले ट्री इनपुट देना पड़ेगा इसको, और इनपुट भी हमने लेवल वाइज लिया है, रिकर्सिवली नहीं लिया, तो इसी ट्री का दे देते हैं हम। इसी ट्री का दे देते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3, अभी 2 के पूछेगा -1 -1, और 3 के पूछेगा 4 5, 4 के पूछेगा -1 -1, 5 के पूछेगा -1 -1। गलती हुई है मुझसे। 1 4 5, अच्छा सॉरी, मैंने इनपुट नहीं दिया x का इनपुट नहीं दिया मैंने। 1 2 3 -1 -1 4 5 -1 -1 -1। अभी हमसे x का इनपुट मांग रहा है, तो हम 5 के लिए चेक करते हैं कि 5 हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। पर हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। 1 2 3 -1 -1 4 5 -1 -1 -1 -1। अब हम 6 के लिए चेक करते हैं, फॉल्स आएगा। तो ऐसे काम करेगा ये, मतलब काफी सिंपल है, रिकर्जन से बहुत आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस बाइनरी ट्री के, बाइनरी सर्च ट्री के। अब जैसे बाइनरी ट्री है, वैसे एक स्पेशल काइंड ऑफ हमारे ट्रीज होते हैं। वो एक मतलब बाइनरी ट्री का ही एक डिफरेंशिएट कर दिया उन्होंने, बाइनरी ट्री से ही क्रिएट कर दिया बाइनरी सर्च ट्रीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बाइनरी सर्च, हमारी जो एल्गोरिदम है उसी का ही एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन है। अब अगर बाइनरी सर्च किसी को याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। बाइनरी सर्च फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये हमारा एक एरे है, और मैं बाइनरी सर्च बता रहा हूँ। बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इसमें सबसे पहले तो हमारा जो भी एरे है या फिर कहीं भी हमको सर्च करना है, तो पहली तो हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि ये सॉर्टेड होना चाहिए। तो अभी सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको 4 के लिए सर्च करना है, तो वो चेक करेगा सबसे पहले कि जो वो मिडल फाइंड करेगा, हमेशा पहले वो मिडल फाइंड करेगा, और वो चेक करेगा कि जो हमारी जो मिडल वैल्यू है क्या वो 4 के इक्वल है। 4 के इक्वल तो नहीं है, 4
4 से छोटी है। अब अगर वो वैल्यू 4 से छोटी है तो फिर यहाँ पे सर्च करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो वो क्या करेगा कि वो इस साइड सर्च करेगा, वो दोबारा मिड कैलकुलेट करेगा, अब मिड ये आ जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे। तो बाइनरी सर्च में जब हमारा आधा जो एरे है वो हमको सर्च करना ही नहीं पड़ रहा, ऐसे धीरे धीरे जब वैल्यू कम होती रहती है तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, बहुत फास्ट होती है, इसकी लॉग इन होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ लॉग इन। तो इन द सेम वे जो हमारे बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं वो इसी इसी मतलब एल्गोरिदम पे इम्प्लीमेंटेड है। बाइनरी ट्री में तो कैसे भी आ सकते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल बाइनरी ट्रीज में कोई ऑर्डर नहीं होता, 6 आ गया यहाँ पे। पर जो हमारे बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं इनमें एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। ये पहली बात तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा रूट है, जो भी रूट का जो भी लेफ्ट सब ट्री होगा उसके उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो रूट से छोटे होंगे, और जो हमारा राइट रूट का राइट सब ट्री है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो रूट से बड़े होंगे। अब ये जो मैंने बताया ये लॉजिक हर नोड पे काम करेगा, क्योंकि जब हम रिकर्जन लगाएंगे तो हर नोड रूट के तरह काम करेगी। मैं एक्सप्लेन एग्जांपल दे देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल मान लो एक 2 और मान लो यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, तो छोटा सा ही है। तो ये भी पूरा हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। तो ये इसमें इसके जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल 3 है, तो ये 1 और 4। तो अब हमारी जो रूट है इससे सारे एलिमेंट यहाँ पे इससे छोटे हैं और इसके में जो भी एलिमेंट है ये इससे बड़ा है, तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री हो गया एक। तो इसमें अगर हमको किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है तो हमको लेफ्ट और राइट सब ट्री पे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हमें एलिमेंट दे रखा होगा, मान लो हमको 4 को फाइंड करना है तो हम चेक कर लेंगे रूट से ही कि हमारा जो रूट है वो अगर हमारा 4 से बड़ा है तो हम राइट सब ट्री पे कॉल करेंगे, क्योंकि हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो राइट सब ट्री है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रूट से बड़े होंगे, तो लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। और इन द सेम वे अगर हमको यहाँ पे वन वन सर्च करने को बोला होता तो फिर हम लेफ्ट पे कॉल करते, रूट से कंपेयर करके राइट पे कॉल ही ना करते, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा सुधर जाती है। इसका कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोड है, अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है एक, और हम यहाँ पे हमें के दे रखा है और हमें के को फाइंड करना है, तो अब अगर हमें किसी ने नल ट्री दे दिया तो ऑब्वियसली हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर हमको रूट पे मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब अगर हमारा जो के है वो रूट के डेटा से बड़ा है, तो अगर रूट के डेटा से हमारा के बड़ा है 1 4, रूट के डेटा से अगर हमारा के मान लो हमें 4 दिया है तो 4 रूट के डेटा से बड़ा है, तो हम इस साइड पे हम सर्च ही नहीं करेंगे, इसलिए हम रूट के राइट वाली साइड पे कॉल कर देंगे। हमने रूट के राइट पे कॉल कर दिया। और अगर ये वाली कंडीशन नहीं है कि हमारा छोटा है रूट के डेटा से, तो हम लेफ्ट वाली साइड पे कॉल कर देंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे कॉल करने का फायदा ही नहीं है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा मतलब फास्ट हो जाती है सर्चिंग। तो ये तो हमारा ट्रीज हो गए। ट्री के ट्रेवर्सल्स होते हैं कुछ, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बाइनरी सर्च ट्री इन्होंने लिया हुआ है, और यहाँ पे अब ये यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो 8 से छोटी हैं, और इस साइड इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 8 से बड़ी हैं। और अब ये आप चीज देख सकते हो, जो ये वाला लॉजिक है वो हर नोड पे काम करेगा। जो 3 है, 3 से लेफ्ट में सारी नोड 3 से छोटी हैं, 3 से राइट में सारी नोड 3 से बड़ी हैं, पर इसकी साइड राइट में जितनी भी नोड्स हैं वो 8 से छोटी हैं। तो ये चीज एक बार माइंड में रखना। अब यहाँ पे ये कंपैरिजन जो बाइनरी ट्री वर्सेस बाइनरी सर्च ट्री, ऑब्वियसली बाइनरी ट्री में अगर हमको किसी भी नोड को सर्च करना है तो हमको लीनियर मैनर में सर्च करना पड़ेगा, सारी नोड्स को जाके सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता, इसलिए वो लीनियर होगा, उसका ऑर्डर ऑफ एन होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाएगी, क्योंकि हम
चेक कर लेंगे पहले ही कि हमारा जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो रूट से छोटा है या रूट से बड़ा है। और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता, कैसे भी नोड्स अरेंज्ड है। यहाँ पे जो हमारी एक पर्टिकुलर नोड के लिए जो भी उसके लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे होंगे, और जो भी उसके राइट से एलिमेंट होंगे वो उससे बड़े होंगे। ये एक्सप्लेन किया हुआ है इधर। बाकी यहाँ पे ट्री के ट्रेवर्सल बताए हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा था, दो तरह के ट्रेवर्सल होते हैं जनरली। एक ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल होता है, और या फिर इसको लेवल ओवर ट्रेवर्सल भी बोलते हैं, जो क्यू से करते हैं। और एक डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल होता है, इसमें जनरली रिकर्जन यूज होता है या फिर स्टैक यूज होता है। रिकर्जन भी इंटरनली स्टैक से ही चलता है। तो जो हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, 1 2 3 4 5, जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो तो ऐसे जाएगा, उसमें तो उन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया, वो तो क्यू से हमारा जाएगा। पर जो हमारे दूसरे ट्रेवर्सल होते हैं, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, उनमें उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उनमें क्या होता है कि हमको ये लॉजिक लगाना होता है लेफ्ट रूट राइट का। सो बेसिकली एक छोटे से पहले उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। वही छोटा सा बाइनरी ट्री है, और अगर हम इसको अब हम इसको इसका अगर हमको इन ऑर्डर लिखना है, इन ऑर्डर हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है लेफ्ट, और उसके बाद रूट और राइट। तो सबसे पहले तो हमारा जो लेफ्ट में है वो हम उधर कॉल करेंगे, तो सबसे पहले 2 प्रिंट होगा। फिर रूट पे आएंगे हम, तो रूट प्रिंट होगा। और फिर हम राइट पे आएंगे, राइट पे कॉल करेंगे तो 3 प्रिंट होगा। और इसके लिए हमारा जो प्री ऑर्डर होता है रूट। इसमें प्री ऑर्डर में रूट पहले आ जाती है, रूट लेफ्ट राइट। तो फिर इसमें ये होगा कि सबसे पहले हम रूट को प्रिंट करेंगे 1, और फिर हम लेफ्ट पे जाएंगे 2, और फिर हम राइट पे जाएंगे 3। तो ये ऐसे प्रिंट होगा। और जो हमारा पोस्ट ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारी रूट सबसे एंडिंग में आती है, लेफ्ट राइट और रूट। तो इसलिए इसमें सबसे पहले तो लेफ्ट पे जाएंगे तो 2 प्रिंट होगा, राइट पे जाएंगे 3 प्रिंट होगा, फिर एंडिंग में 1 प्रिंट होगा। तो 2 3 1 प्रिंट होगा। अब ये चीज काफी मतलब एक्सप्लेन अच्छा कॉन्सेप्ट है काफी। अगर हम एक बीएसटी दे रखा है, अब बीएसटी हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, तो फिर एक बीएसटी का जो इन ऑर्डर होगा वो एक सॉर्टेड एरे के रूप में आएगा। मतलब आप प्रिंट करके देखना तो एक सॉर्टेड एरे आएगा। बाकी तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल है वो जनरली रिकर्सिव होते हैं, और उनमें जनरली मल्टीपल फंक्शन कॉल्स लग रही होती हैं। और जो ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल है वो हमेशा रूट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो बीएफएस होता है वो तो ऐसे स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले रूट से, और ऐसे हम लेवल वाइज जाते हैं। सबसे पहले इसमें रूट आएगी, पर बीएसटी में जरूरी नहीं है कि पहले रूट आएगी। बीएसटी में इसमें डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल में हमेशा सिर्फ प्री ऑर्डर में रूट आएगी सबसे पहले। प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट होता है, तो सिर्फ इसी में सबसे पहले हमारी रूट आएगी और किसी में नहीं आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो इफ वी वांट टू सर्च समथिंग मोर क्लोजर टू रूट, तो हम उसमें प्रेफर करेंगे बीएफएस ऑब्वियसली, बिकॉज हम यहाँ पे सबसे पहले रूट पे ट्रेवल कर रहे हैं। पर अगर हमारा जो टारगेट नोड है वो एक लीफ नोड के क्लोज है, मतलब जो ट्री है, ट्री के एंड में कहीं पे जाके आ रहा है। अब एंड में कहीं पे जाके आ रहा है तो हम रिकर्जन लगा सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि रिकर्जन ऐसे ट्रेवल करता है। तो इसलिए हम डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल यूज करते हैं। तो इसका कोड काफी सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ इसका कोड। यहाँ पे मैंने ट्रेवर्सल सेव किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल हमें एक रूट दी हुई है, एक ट्री का रूट दिया हुआ है, और हमें इसका इन ऑर्डर प्रिंट करना है। तो ऑब्वियसली अगर हमको नल ट्री दे दिया तो हम रिटर्न कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था नल की वैल्यू को हम कभी एक्सेस नहीं करते, एरर आ जाता है ऐसे। तो अब इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में पहले हम वेट सेकेंड, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, पहले प्री कोड दिखा रहे हैं नहीं, प्री ऑर्डर यस। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले तो रूट आएगी, और उसके बाद लेफ्ट देन राइट। रन, इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ।
रन करके देख लेते हैं फिर। ट्रीज में ट्रेवर्सल, तो जो हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है इसमें सबसे पहले लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, देन रूट आएगा। तो हम इसी ऑर्डर में कॉल्स करेंगे। अब ये जो कॉल्स हैं ये चाहे कितनी भी अंदर कितनी भी नेस्टिंग हो इनकी, पर ये इसी ऑर्डर में जाएंगी। सबसे पहले लेफ्ट। अब अगर लेफ्ट पे कॉल हो रही है तो ये सबसे लेफ्ट वाली रूट है, ये सबसे पहले वो प्रिंट होगी। उसके बाद फिर हम राइट पे जाएंगे, फिर हम रूट का डेटा प्रिंट करेंगे। तो ये इसी मैनर में जाएगा। और हमारा जो इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर में सबसे पहले तो ये मैंने गलत लिख दिया इधर, रूट का डेटा नहीं आएगा इधर। वेट अ सेकेंड। नो, इसलिए से पहले हम लेफ्ट पे कॉल करेंगे ना। इन ऑर्डर रूट लेफ्ट, और उसके बाद लेफ्ट पे कॉल करने के बाद हम रूट पे जाएंगे। तो सी आउट रूट डेटा। अब रूट का डेटा प्रिंट करने के बाद हम राइट पे जाएंगे। तो इन ऑर्डर रूट राइट, यस, हाँ, ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। और हमारा पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारा रूट आएगा, फिर हमारा लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। हाँ, सही है। अब जो लेवल ऑर्डर है ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जो इसमें हमने क्यू ले रखी है, यही जो पहले एक्सप्लेन किया था वही तरीका है। हमने क्यू ले रखी है एक, और हम क्यू में रूट को पुश कर रहे हैं। और हम वही कर रहे हैं, पहले फ्रंट नोड निकाल रहे हैं, और फिर हम फ्रंट नोड के चाइल्ड चेक करेंगे कि उसमें उसका लेफ्ट चाइल्ड है या उसका राइट चाइल्ड है। और अगर चाइल्ड नल नहीं है तो हम उनको नोड क्यू में पुश करते जाएंगे। और फिर यही प्रोसेस चलता जाएगा हमारा। जो भी हमारा क्यू के फ्रंट में आएगा सबसे पहले वो प्रिंट कर देंगे, और फिर हम उसके चाइल्ड पूछेंगे। तो जो अगर चाइल्ड हमारा नल नहीं है तो ही हम इस लूप में जाएंगे। तो बेसिकली ये तो हमारे ट्रेवर्सल हो गए। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम ऐसे ट्रेवल करते हैं तो ये पहले जीरो ट्रेवल होगा, क्यू में पहले ये आएगा, उसके बाद हम इसके चिल्ड्रन पूछेंगे, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 के चिल्ड्रन पूछेंगे, 3 4, फिर 2 के चिल्ड्रन पूछेंगे, 5 6। तो इस मैनर में हम ट्रेवल करेंगे। पर जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है इसमें हम रिकर्जन लग रहा है तो रिकर्जन सबसे डीप में जाएगा। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट। तो सबसे पहले ये लेफ्ट में जाएगा, फिर ये रूट पे जाएगा, रूट पे जाने के बाद फिर ये राइट पे जाएगा। अब हमारा लेफ्ट खत्म हो गया, यहाँ पे लेफ्ट पूरा खत्म हो गया। फिर हम रूट पे आएंगे, जीरो प्रिंट करेंगे, फिर हम 2 पे आएंगे। अब 2 पे आने के बाद हम पहले लेफ्ट पे जाएंगे, 5 प्रिंट करने के बाद फिर 2 प्रिंट करेंगे, फिर राइट प्रिंट करेंगे 6। तो ये मैनर होता है इसमें। तो ट्रीज में तो इतना ही था। बाकी अब ग्राफ है, तो ग्राफ भी काफी इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी। ग्राफ में दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, तो ग्राफ में भी ट्रेवर्सल दोनों की सेम ही है, मतलब ट्री के और ग्राफ के ट्रेवर्सल ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ी इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस आएगा। तो ग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि ग्राफ को आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे ट्री तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या हो रहा है ये? ट्री तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से ट्रेवल कर रहा होता है।
पर जो हमारा ग्राफ होता है इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ग्राफ कैसे भी जा सकता है, ग्राफ ऐसे चला गया या फिर, और ऐसे ये भी एक परफेक्ट ग्राफ है, अगर ये जो नोड है वो इन तीनों से लिंक्ड नहीं है तो ये भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये भी नॉर्मल ग्राफ है। तो ग्राफ में हमारे कुछ वर्टिसेस होते हैं और वर्टिसेस के बीच में एज होती हैं जो उन वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे भी लिखा है ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड अ सेट ऑफ एजेस व्हिच कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ नोड्स। सो मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जो हमारी ग्राफ से यूज होती हैं, जैसे हमारी नेटवर्किंग हुई और इंटरनेट हो गया। बेसिकली तुम फेसबुक का काफी अच्छा एग्जांपल है। यू मान लो कि अगर एक फ्रेंड है ए और एक यूजर है बी, अभी आपस में फ्रेंड है तो हम इन दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। और मान लो कि यहाँ पे सी डी एफ, ये तीन है, ये आपस में कनेक्टेड है, सी डी ई, ये आपस में कनेक्टेड है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ए और बी इन तीनों के फ्रेंड्स होंगे, नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए ग्राफ से काफी अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर मान लो कि आपस में कनेक्टेड थे तो हम आपस में फ्रेंड्स थे तो ये हम कर सकते थे इनको कनेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जस्ट एग्जांपल था ये। तो ग्राफ में दो तरह की इनकी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली। एक तो होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसमें हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ इसके वर्टिसेस हैं उसका हमारा एक वी क्रॉस वी का मैट्रिक्स बनेगा। और उस वो काफी इजी होता है, मतलब 2D एरे होता है वो, पर उसमें स्पेस ज्यादा लगती है। तो जनरली कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तो वो यूज होता है, पर इंटरव्यूज वगैरह में मतलब एडजेसेंसी लिस्ट ज्यादा बढ़िया रहता है। और एडजेसेंसी लिस्ट में हम लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, मतलब लिंक लिस्ट काफी सही रहता है उसमें। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल 1 2 3, अब ये एक परफेक्ट एकदम परफेक्ट ग्राफ है। तो अगर हम इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाए तो उसमें क्या होता है कि 1 2 3, 1 2 3, अब हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वन की इस वर्टेक्स की ये किस दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो अगर 1 2 से कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे 1 1 डाल देंगे, और इसी इसी मैनर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर 2 3 से कनेक्टेड है तो हम 1 डाल देंगे, 2 3 से कनेक्टेड है 1 डाल देंगे। अब ऑब्वियसली अगर 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 1 से भी कनेक्टेड होगा, तो 2 1, और अगर 2 3 से कनेक्टेड है तो 3 2 से भी कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक हमने एक एरे ले लेंगे हम, और जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 सारे वर्टेक्स को हमने डाल दिया, और फिर हम ऐसे शो कर सकते हैं कि वन वन से कौन कौन कनेक्ट कर रहा है बेसिकली। सो 1 से 2 कनेक्टेड है तो हम 2 डाल देंगे, और फिर हम ऐसे अब 2 से 3 कनेक्टेड है तो हम ऐसे 3 लिख सकते हैं, पर 3 से कोई कनेक्टेड नहीं है तो ये एम्प्टी रहेगा। तो और अब होता क्या है कि जैसे 1 2 से कनेक्टेड है और 2 1 से कनेक्टेड है, तो बेसिकली हमें काउंट रखना पड़ता है कि जिससे कि हम ये चेक कर पाए कि हम बेसिकली किस वर्टेक्स पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो इसलिए हमें एक बूलियन एरे लेना पड़ता है उसके लिए। मैं कोड दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे बता रहा है कि सिमिलर टू बेस्ट फर्स्ट वर्चुअल इन ट्रीज, बस ये अनलाइक ट्रीज ग्राफ में साइकिल्स हो सकती हैं, तो वी मे कम टू द सेम नोड अगेन। सो टू अवॉइड प्रोसेसिंग अ नोड मोर देन वंस वी यूज अ बूलियन विजिटेड एरे। मैं एक बार कोड से ही दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। हम्म, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस इनपुट करा लेंगे, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारी स्टार्टिंग एज है वो 1 है, स्टार्टिंग जो हमारी वर्टेक्स है वो 1 है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे एक एजेस 2D एरे क्रिएट कर रहा हूँ, डायनेमिकली क्रिएट कर रहा हूँ, होपफुली आपको आता होगा डायनेमिक एलोकेशन। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, और मैं सबसे पहले इसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इसके जितने भी इसके सेल्स हैं।
तो मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया सबसे पहले, 0 0 0 0 0 0 0 0 यस। अब इसमें हमारी एज है 2 और हमारे वर्टेक्स है 3, तो नंबर ऑफ जितने भी 3x3 का हमारा बनेगा, तो हमने 3x3 का बना लिया। इसके बाद अब हम एज का इनपुट करवाएंगे, तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए, फर्स्ट वर्टेक्स से सेकंड वर्टेक्स, बिकॉज हमें एज बतानी होगी ना, ऐसे कि 1 से 2 एज है, 2 से 3 एज है, 4 से 5 एज है, तो हमको ऐसे एज बतानी होगी, इसलिए हमने ऐसे फर्स्ट वर्टेक्स और सेकंड वर्टेक्स ले लिया। और ये स्टार्ट में बताऊंगा किस ले लिया मैंने। तो हम एक लूप लगाएंगे और हमने यहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ एजेस ले ली थी, अब हम लूप लगाएंगे हमें कितनी एजेस हमारी हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे हमारी 2 एजेस हैं, तो ये लूप 2 बार चलेगा और यहाँ पे हम फर्स्ट वर्टेक्स और सेकंड वर्टेक्स की वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 2 डालेंगे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्टार्ट, और मैं बेसिकली प्रिंट कराने के लिए, अब हमारा कहीं से तो स्टार्ट हो रहा होगा, हमारा जो ग्राफ है स्टार्ट हो रहा है वो कहीं से, तो इसलिए मैंने एक बूलियन ले लिया स्टार्ट चेक, जो मैंने फॉल्स रख दिया। अब स्टार्टिंग में फॉल्स है ये, तो मैंने चेक कर लिया, अगर ये फॉल्स है तो जो फर्स्ट वर्टेक्स की पहली वैल्यू होगी वो स्टार्ट के अंदर आ जाएगी, और मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये लूप चलेगा ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, क्योंकि ये ट्रू है, तो हमारे स्टार्ट के अंदर हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे, मैंने पहले क्या बताया था, हम ये चेक करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में किस वर्टेक्स की किस वर्टेक्स पे एज आ रही है, और जिस पे एज आ रही होती है हम वहां पे 1 डाल देते हैं। तो बेसिकली अब हमने पहली एज डाली थी 1 से 2, तो फिर 1 से अगर हम 2 डालेंगे तो 1 से 2 यहाँ पे हम 1 डाल देंगे, और 1 से 2 है तो 2 से 1 भी एज आ रही होगी, तो यहाँ पे भी 1 डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स से फर्स्ट सेकंड वर्टेक्स से फर्स्ट वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स से सेकंड वर्टेक्स दोनों में, मतलब 1 से 2 पे और 2 से 1 में, दोनों में मैंने 1 डाल दिया इसी सेम मेथड से। और जैसे सेकंड एज है वो 2 से 3 पे आ रही है, तो 2 से 3 यहाँ पे हम 1 डाल देंगे, और 3 से 2 यहाँ पे 1 डाल देंगे, तो ये हमारा एक क्रिएट हो जाएगा हमारा 2D मैट्रिक्स। अब हम एक विजिटेड एरे ले लेंगे, वो मैं बताता हूँ किस लिए काम आता है, और हम उसकी सारी जितनी भी इंडेक्स है ना उन पे फॉल्स डाल देंगे, और इस विजिटेड एरे का जो साइज है वो हमारी जितने भी हमारे वर्टेक्स हैं इसके इक्वल होगा। तो 3 वर्टेक्स है तो 3 मैंने फॉल्स ले ली, और मैं एज्यूम करके चल रहा था ना ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 ले लेते हैं इधर, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, बट 0 सही रहेगा। जीरो 1 1 2, तो अब मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन लिखे हैं। सबसे पहले तो प्रिंट डीएफएस जो डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल करेगा और सबको प्रिंट करेगा, और एक प्रिंट बीएफएस जो ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल करेगा, और जैसे मैंने बताया था क्यू लेके वो ट्रेवर्स करेगा और वैसे प्रिंट करेगा। तो दोनों को देखते हैं पहले कैसे चल रहे हैं, उसके बाद आउटपुट शो करूंगा मैं। तो इसमें तो सिमिलर है जैसे ट्री में किया था, हमने क्यू ले रखी है और हमने एक विजिटेड एरे ले रखा है। अब सबसे पहले तो मैंने विजिटेड एरे के सारे सारे इंडेक्स पे फॉल्स रख दिया, तो यहाँ पे फॉल्स कर दिया हमने। तो उसके बाद जिस एसवी स्टार्टिंग वर्टेक्स है ये मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है स्टार्ट, जो यहाँ से यहाँ पे हमने जो स्टार्ट बनाया था, यहाँ पे जो स्टार्ट लिया था ये स्टार्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा एसवी में स्टार्टिंग वर्टेक्स, और हमने क्यू ले ली, और इसके बाद हम क्यू में पुश कर देंगे जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है। तो हमने क्यू ले ली और क्यू में हम 0 पुश कर देंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स से, और अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, सेम वे में। और हमने क्या किया, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स में ट्रू रख दिया, जो विजिटेड एरे था। अभी 0 तो क्यू में जा चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रू रख देंगे। अब क्या होगा, जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं होती हम फ्रंट, वही सेम है जैसे पहले किया था ट्रीज में, फ्रंट एलिमेंट निकालेंगे यहाँ से,
और अब हमने 0 को बाहर निकाल दिया क्यू से, और फिर ये फ्रंट को प्रिंट करेगा। तो हमारा अगर ये आउटपुट है तो 0 प्रिंट होगा सबसे पहले, और फिर ये अब चेक करेंगे हम कि 0 की एज किस पे है, किससे 0 की किस वर्टेक्स पे एज जा रही है। तो 0 की 1 पे जा रही है, तो ये चेक करेगा अब कि एजेस जो हमारा ये 2D मैट्रिक्स है, एजेस फ्रंट जो वैल्यू हमने अभी क्यू से निकाली, फ्रंट ऑफ आई इज इक्वल 1। अब 0 0 तो 0 ही है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, एजेस ऑफ फ्रंट 0 है, 0 एंड आई में 1 आ जाएगा, 0 1 इक्वल 1। हाँ 1 है यहाँ पे। और नॉट विजिटेड ऑफ आई, मतलब ये हमारा विजिटेड एरे है, विजिटेड, तो विजिटेड का जो 1 है वो अभी भी फॉल्स है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम इसके अंदर आएंगे और हम 1 को पुश कर देंगे क्यू के अंदर, क्योंकि अब हम ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं। पहले हम ऐसे ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल है, तो पहले 0 ट्रेवर्स हो गया, 0 को क्यू में डाल दिया। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले हमने 1 लिया, 1 को हमने क्यू में पुश कर दिया, 1 को क्यू में पुश कर दिया। अब अगर हम क्यू में पुश कर चुके हैं तो हम उसको एक बार विजिट कर चुके हैं, तो हमने उसको भी ट्रू कर दिया सेम वे में। इसको ट्रू करने के बाद ये लूप दोबारा चलेगा। अब 0 तो हमने बाहर निकाल दिया था क्यू से, तो 0 बाहर आ गया था, तो फिर हमारा अब क्यू के स्टार्टिंग में 1 है, तो 1 बाहर आएगा और हम 1 को प्रिंट करेंगे। 1 को प्रिंट करने के बाद अब ये चेक करेगा 1 की किस पे एज आ रही है। अब 1 की एज जो है वो 0 पे भी आ रही है। अब देखो 1 से 0 पे अगर हम देखेंगे तो 1 है ऑलरेडी। तो अगर अगर हमें विजिटेड एरे नहीं लेते तो क्या होता कि हम इस लाइन में आते, एजेस 1,0 इक्वल 1, 1,0 पे 1 है, और नॉट विजिटेड ऑफ आई, नॉट विजिटेड ऑफ 0 यहाँ पे ट्रू है। पर अगर इनकेस यहाँ पे फॉल्स होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती और हम एक साइकिल में घूमते रहते। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ये हमने विजिटेड एरे लिया था और हमने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया था। तो इससे क्या होगा कि भले ही ये वाली कंडीशन ट्रू हो, एजेस फ्रंट आई इक्वल -1, पर ये जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है हमेशा फॉल्स आएगी, क्योंकि हम इस ऑर्डर में चल रहे थे, तो हमने 0 को ऑलरेडी पहले से ही हमने ट्रू कर दिया था, तो हम यहाँ पे जाएंगे ही नहीं। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 to 1 क्या कोई आ रही है, 1 की कोई साइकिल है ऐसी, 1 की कोई साइकिल नहीं है, तो ये भी यहाँ पे 0 है। फिर हम चेक करेंगे 1 की 2 पे जा रही है, 1 की 2 पे आ रही है, तो यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन में आके चेक करेंगे, एजेस फ्रंट हमारा 1 है, 1 2 इक्वल 1। अब यहाँ पे 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड नॉट विजिटेड आई, तो ये चेक कर रहा है कि यहाँ पे फॉल्स है या नहीं है। तो अब यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि 2 तो हमने अब तक विजिट किया ही नहीं है। 2 हम 0 पे आ चुके हैं, 1 पे आ चुके हैं, पर हम 2 पे नहीं आए, तो 2 फॉल्स है, इसलिए हम अंदर आएंगे और 2 को पुश कर देंगे क्यू के अंदर। हम 2 को पुश कर देंगे और विजिटेड ऑफ 2 को ट्रू कर देंगे। तो अब ट्रू भी विजिट हो चुका है, तो उसको भी हमने ट्रू कर दिया। तो हम लूप में दोबारा जाएंगे जब, तो जो हमारा फ्रंट है वो 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा हमारी क्यू से। 2 बाहर आने के बाद क्यू एम्प्टी हो चुकी है इस पॉइंट पे, और हम 2 को प्रिंट कर देंगे। 2 को प्रिंट करने के बाद हम इस लूप में जाएंगे और हम चेक करेंगे कि 2 की किससे एज है। अब 2 की एज 1 से है, पर यहाँ पे 0 में तो कुछ नहीं आएगा, 0 में भी हम कंटिन्यू करेंगे। और अब जब ये 1 पे आएगा, एजेस ऑफ 2 1 इक्वल 1, 2 1 पे 1 है, पर हम 1 पे ऑलरेडी ट्रू लगा चुके हैं, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारी साइकिल नहीं बनेगी, तो फिर मतलब ये लूप चलेगा नहीं। इफ वाले कंडीशन ये ट्रू नहीं है, तो फिर हम स्किप कर देंगे। तो ये सारा मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे और इस ऑर्डर में हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये देख लो, ये यही ऑर्डर है जैसे मैंने बताया था, 0 1 2। और अगर कोई बड़ा एग्जांपल लेना है तो 0 1 इसे ले लेते हैं, 0 0 1 2 3 4। तो अगर ये हमारा ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसमें ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल करेंगे तो ऐसे जाएगा हमारा इस वे में। तो फिर सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। तो हम चेक कर सकते हैं ये
यहाँ पे मैंने ये इनपुट सेव किया हुआ है, तो ये बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। बार बार पे इनपुट मांग रहा है। अब मैं कोड को साथ साथ में चला के दिखा देता हूँ एक बार, साथ साथ में ड्राई रन कर देता हूँ। अब ये सबसे पहले तो हमसे वर्टिसेस और एजेस मांग रहा है। अब अगर हम इस ग्राफ के लिए देखें तो हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5 हो गई, तो हम 5 लिख देंगे। और एजेस भी 1 2 3 4 5 हो गई, तो एजेस भी 5 लिख देंगे। और अब वो हमारा 2D मैट्रिक्स क्रिएट करेगा 0 बाय 0 का, मतलब 0 सब में 0 डाल देगा, 5 बाय 5 का वो एक क्रिएट करेगा। और अब हम एजेस डालेंगे, और अब ये एजेस हमसे यहाँ पे मांगेगा। तो हमारी पहली एज 0 से 1 पे है, दूसरी एज हमारी 1 से 2 पे है, और फिर 1 से 4 पे है, और 2 से 3 पे है, और 4 से 3 पे है। अब ये देखो वही ऑर्डर आया जो मैंने बताया था। ये कहाँ चला गया, ये देखो 0, फिर 1 2 1 2, और फिर 4 3 4 3, यही ऑर्डर आया जो मैंने बताया था। तो मतलब काफी सिंपल है ये, काफी ट्रीज की तरह ही है एकदम। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च देख लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में तो रिकर्जन लगेगा, तो इसमें भी हमने विजिटेड एरे लिया हुआ है। और स्टार्ट पॉइंट तो मैंने भेज ही दिया था नीचे से, स्टार्ट पॉइंट, बिकॉज हमें पता रहना चाहिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट तो मैंने भेज ही दिया था। तो डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में क्या होगा, डेप्थ फर्स्ट एक बार दोबारा ये ड्रॉ कर लेता हूँ तो अच्छे समझ आएगा ये। डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल तो 0 1 2 0 1 2 3 4, मान लो ये है। तो डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल में क्या होगा कि सबसे पहले तो हम इस पे आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और हम स्टार्टिंग पॉइंट हमने पास किया हुआ है पहले से 0, तो हम 0 को प्रिंट कर देंगे, तो 0 प्रिंट होगा सबसे पहले। और फिर हम अब इसमें यहाँ पे भी हमारे पास एक विजिटेड एरे है ऑलरेडी, 0 1 2 3 4, ये विजिटेड एरे है हमारा, और इसमें सब में पहले से फॉल्स रखा हुआ है। अब हम 0 को प्रिंट कर चुके हैं, तो 0 हमारा विजिट हो चुका है, तो हम 0 को ट्रू कर देंगे। ट्रू करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि 0 की एज किस पे आ रही है। 0 की एज 1 पे आ रही है, तो वहां पे 1 होगा ऑब्वियसली, बिकॉज हमने ऐसे ही क्रिएट किया है हमारा जो ग्राफ है एडजेंसी मैट्रिक्स है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि आ रही होगी जो एज है। तो इसलिए क्या क्या होगा कि 0 की अगर 1 पे एज आ रही है, तो हम इस लूप में जाएंगे और हम चेक करेंगे 0 इफ एजेस, जो हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स है 0 कॉमा आई। अब 0 कॉमा अगर 0 है, अगर ऐसे होता साइकिल बन रही होती, सपोज ऐसे होता साइकिल बन के घूम के अपने आप पे ही आ रहा होता, पर अभी ये साइक्लिक नहीं है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन आई इज इक्वल इक्वल एस को कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं साइक्लिक नहीं है। तो 0,0 पे तो ये आगे चले जाएगा। अब ये चेक करेगा कि 0,1 पे अगर 1 है, तो 0,1 पे 1 होगा, क्योंकि 0 की 1 पे जा रही है। तो ये क्या करेगा, अब ये चेक करेगा कि 1 ऑलरेडी 1 ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। बिकॉज अगर 1 ऑलरेडी विजिटेड है तो हमें उसको ट्रेवर्स नहीं करना। तो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इफ विजिटेड ऑफ आई, विजिटेड ऑफ अगर 1 विजिटेड है तो कंटिन्यू कर दो, वरना हम कॉल कर देंगे, रिकर्सिव कॉल लगा देंगे 1 पे, आई पे। तो इससे क्या होगा कि हम 0 को प्रिंट करेंगे, ये हमारी आउटपुट है फॉर एग्जांपल। तो 0 प्रिंट हो चुका है हमारा। तो हम इस पॉइंट के बाद हमने चेक किया कि हमारी जो मैं यहाँ पे एक बार मैट्रिक्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा एक बार। 0 1 2 3 4
0 1 2 3 4। तो हमारी 0 से 1 पे है एज, 1 से 0 पे है, 1 से 2 पे है, 2 से 1 पे है, और हमारी जो एज है 1 से 3 पे है, 1 से 3 पे, और 3 से 1 पे है, और 3 से 4 पे भी है, 4 से 3 पे भी है, 2 से 4 से 2 पे भी है, 2 से 4 पे भी है। आई गेस हो गया। सो अब हमने ये एडजेसेंट मैट्रिक्स, इसका नाम एजिस है, और ये मैट्रिक्स हमने पास किया हुआ है हमारे इसमें, ये रहा, हमने एज आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है चेक करने के लिए। तो अब हम अपनी 0 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले कि 0 की एज किस पे है। तो 0 की एज 1 पे है, तो ये लूप में चेक कर रहा है कि 0 की एज कहाँ पे है। तो 0,1 पे हमें एज मिल जाएगी 1, और हमारा विजिटेड 1 के लिए फॉल्स है, तो मतलब अब तक 0 पे हम नहीं आए, तो हम 1 पे कॉल कर देंगे, 1 पे। तो 1 पे कॉल करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे टॉप पे, क्योंकि रिकर्जन ऐसे चलता है। रिकर्जन में क्या होगा, 1 पे कॉल होगी तो ये सेम फंक्शन अब 1 के लिए कॉल होगा। 1 के लिए विजिटेड भी सेम है, एजेस भी सेम है, ये भी सेम है, बस अपना ये स्टार्टिंग वर्टेक्स अब 1 हो चुका है, क्योंकि हमने 1 से कॉल किया है। अभी सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा, क्योंकि अब स्टार्टिंग वर्टेक्स 1 है, तो अपना 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होगा, फिर ये चेक करेगा कि 1 की किस पे, 1 की किस पे एज है। अब 1 की एज 2 पे है, 1 की हम 1 के लिए चेक करेंगे। अब 1 के लिए 0, अब देखो 1 के लिए 0 भी आएगा, क्योंकि 0 की अगर 1, 0 की 1 पे एज है तो 1 की 0 पे भी होगी। पर जस्ट बिकॉज हमने विजिटेड में 0 में ट्रू किया हुआ है, तो इट्स ये वाली जो लाइन है, इफ विजिटेड ऑफ आई, हम यहाँ पे इक्वल इक्वल ट्रू भी लिख सकते थे अगर कंफ्यूजन है किसी को। तो अगर ये ट्रू है, मतलब हमने ऑलरेडी हम इसे विजिट कर चुके हैं, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। तो 0 को हम विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर हम कंटिन्यू कर देंगे, और 1 को तो हम विजिट कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि 1 पे 2 पे एज है, 1 की 2 पे एज है या नहीं। तो 1 की 2 पे एज है, और 2 ऑफ विजिटेड भी हमारा ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो मतलब 2 भी हमने आज तक विजिट नहीं किया, तो हम 2 पे कॉल करेंगे। अब 2 पे जब कॉल होगी, तो फिर ये सेम फंक्शन 2 के लिए कॉल होगा, और उस पॉइंट वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, स्टार्टिंग वेक्टर, तो हमारा स्टार्टिंग, तो फिर हम 2 प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। 2 प्रिंट करने के बाद हम 2 को भी ट्रू कर देंगे, क्योंकि अब 2 का काम हो चुका है, 2 प्रिंट हो चुका है, तो 2 भी ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद हम चेक करेंगे 2 की किसके साथ एज है। अब 2 की 1 के साथ भी है, और 2 की 4 के साथ भी है, पर बिकॉज 1 विजिटेड है, तो हम 1 को इग्नोर कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा ये वाला ये कंडीशन है, इफ विजिटेड इक्वल इक्वल ट्रू, ये काम आ जाएगी हमारी दोबारा। और फिर हम चेक करेंगे 2 की 0 से नहीं है, 1 से है, ये इग्नोर हो जाएगा। 2 की 2 पे नहीं है, 2 की 3 पे नहीं है, 2 की 4 पे है। अब हम चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन आएगी, इफ एज इज 2,4 इक्वल इक्वल 1। अब है ट्रू, तो हम नीचे आएंगे और हम चेक करेंगे विजिटेड ऑफ 4 इक्वल इक्वल ट्रू। अब विजिटेड ऑफ 4 तो फॉल्स है, क्योंकि 4 पे तो हम अब तक आई नहीं है, तो इसलिए हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे आएंगे और हम 4 पे कॉल कर देंगे। जब 4 पे कॉल होगी, अभी अब हम 0 पे आ चुके हैं, 1 पे आ चुके हैं, 2 पे आ चुके हैं, 4 पे कॉल होगी, तो हम 4 प्रिंट कर देंगे। अब 4 के लिए ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा पूरा का पूरा, तो स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है वो हमारा 4 है। अब तो 4 प्रिंट होगा, और हम 4 को ट्रू कर देंगे, बिकॉज अब 4 का काम खत्म हो चुका है, तो हमने 4 को ट्रू कर दिया। अब 4 को ट्रू करने के बाद हम चेक करेंगे कि 4 की किस पे एज आ रही है। तो 4 की, अब हमारी 4 की एज 3 पे भी आ रही है, 2 पे भी आ रही है, 0 पे नहीं आ रही, 1 पे नहीं आ रही, 2 पे आ रही है, हाँ आ रही है। पर 2 ऑलरेडी हमारा विजिटेड है, तो हम 2 को इग्नोर कर देंगे। 2 की 3 पे आ रही है, 3 भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम 3 को भी इग्नोर कर देंगे। नहीं, 3 हमारा विजिटेड नहीं है, सॉरी, तो 3 फॉल्स आया 3 पे, तो हम 3 पे कॉल कर देंगे। तो जब 3 पे कॉल करेंगे, इन द सेम मैनर ये सेम फंक्शन 3 के लिए कॉल होगा, और 3 प्रिंट होगा। तो यही ऑर्डर होगा एग्जैक्टली जिसमें हमारा आउटपुट आएगा डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल का। तो इसमें यही होता है, सबसे पहले ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल में तो हम यू कर ऐसे इस मैनर में जाते हैं, पर जो डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल होता है उसमें हम
सबसे डीप डीप में जाते हैं तो ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे, तो ये नेस्टिंग हो रही है मतलब रिकर्सिव कॉल्स की। तो जब 3 के लिए हम चेक करेंगे, 3 के लिए सारे ट्रू हो चुके हैं, तो सब में मतलब कंटिन्यू हो जाएगा ये। तो मतलब लूप से बाहर आ जाएंगे और वापस हम मेन में आ जाएंगे और प्रिंट हो चुका होगा हमारा। तो मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ। आहे ना मराठी आहे बोलतो फॉर्म बोलतो सध्या चालू आहे जे होऊ द्या माइक बंद कर अरे हो देखो डीएफएस में डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल में यही ऑर्डर आ रहा है 0 1 2 4 3 0 1 2 4 3। तो काफी मतलब ये रिकर्जन से काफी इजीली हो जाता है। तो एक बार आप जिनको जरूर एक बार ट्राई करके देखना इसको। बाकी तो कुछ क्वेश्चन है ग्राफ के, उनका मैं हिंट देना चाहूंगा, तो एक बार वो देख लेते हैं। अ, wait a second. एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बाइनरी ट्री का। उसमें क्या है कि 1 2 3 4 5। अब फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा बाइनरी ट्री है, तो फिर क्वेश्चन ये कि हमको ये इसकी रूट पास करी होगी और हमको इसको ना मिरर करना होगा। तो मिरर करने के बाद ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 2 और 5 4 हो जाएगा। तो ये मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी रिकर्जन रिकर्जन यूज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो नल के लिए चेक करेंगे कि अगर हमारा हमें नल नल ट्री दे रखा है, अगर नल ट्री दे रखा है फिर तो फायदा ही नहीं है कोई, तो हम रिटर्न कर देंगे। पर अगर हमको नल ट्री नहीं दे रखा, तो फॉर अ पर्टिकुलर नोड हम उसकी लेफ्ट और राइट चाइल्ड को स्वैप कर देंगे। अब अगर हम इसको इन दोनों को स्वैप कर देंगे, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को, तो ये पूरी की पूरी नोड ही स्वैप हो जाएंगी, इनका डेटा स्वैप नहीं करना। कई लोगों को लगता है कि डेटा स्वैप करने से हो जाएगा। डेटा स्वैप करने से क्या होगा कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 तो आ जाएगा, पर फिर यहाँ पे 3 के ये 3 के चिल्ड्रन शो करेगा, 4 5 वो तो है ही नहीं। तो इसमें क्या करना है कि पूरी की पूरी नोड ही स्वैप करनी है हमको। तो नोड स्वैप करने के बाद ऐसे हो जाएगा। और जब हम 2 पे जाएंगे, जब कॉल 3 पे आएगी, 3 के तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं। जब कॉल 2 पे जाएगी तो फिर 2 के चिल्ड्रन 4 5 थे और उसको स्वैप करने के बाद 5 4 हो जाएगा। तो मतलब इसका काफी सिंपल सा कोड है। मैं एक बार कोड लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, मिरर डॉट cpp, और
हमें कुछ करना, रिटर्न तो करना नहीं है, हमको सिर्फ मिरर करना है, तो हमारा फंक्शन जो है वो वॉइड होगा। और int स्टार रूट, रूट हमको दे रखी होगी। तो हम चेक करेंगे कि इफ रूट इक्वल नल, तो हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि नल ट्री दे रखा है, तो रिटर्न। फिर हम चेक करेंगे कि अगर अब हमारे रूट के ही कोई चाइल्ड नहीं है, हमारी रूट ही लीफ नोड है, तो भी कोई फायदा नहीं है मिरर करके, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं रूट लेफ्ट इक्वल नल एंड रूट राइट इक्वल नल, तो भी हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अगर ऐसा नहीं है else, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्वैप कर देंगे रूट लेफ्ट रूट राइट एंड, और फिर हम रिकर्सिव कॉल कर देंगे लेफ्ट पे भी, और रिकर्सिव कॉल कर देंगे राइट पे भी, तो ये मतलब काम कर जाएगा एकदम सही। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स पे टाइप कर देना। थैंक यू वेरी मच। Wow, that was indeed a very insightful session, sir. Thank you for that. So now it's time to move to the Q&A round. So I would request the attendees to send in your doubts and queries via chat or raise your hands. We'll try to get your questions answered, everyone. If no one has any questions right now, you can ask your questions in the group. And mentors are added in the group, so you can join the WhatsApp group. The link will be shared in the chat box. So now that we are done with the session, let's move on to the last part of day 3 of the workshop, the quiz. We'll be sharing the quiz link in the chat box, so kindly go through it once and attempt it confidently. The time limit for the quiz is 15 minutes, so all the best, everyone. The quiz link is in the chat box now. You can all start joining in.
We'll be starting with the quiz in 2 minutes, so join in, everyone. Excuse me, and everybody is requested to join by their own name. Okay, please. So some guys XYZ. So please come with your real name. Guys, we'll be starting in another minute. Please, if you haven't joined, join the quiz quickly.
Okay, I think we have got the winners, the top five. First is Shivam. So congratulations to all of you guys. Can we see you on the screen? Shivam, Amarta, Nitya, Suhani, and Yash. Okay, so Yash is still in the process, I can see. Any of you who wants to share the feedback? How did you find the quiz and the session also? Okay, so there is some changes. Okay, cool. Okay, so Yash has got the first position. Nice. Great. So there are many Yash and Shivam. So how would we be able to differentiate? So Yash or Shivam, would you guys open up your mic and tell? That's okay if you guys are feeling shy. No problem. Just make sure you are just completing the feedback form and also putting your name so that we can differentiate because I can understand there must be many Yash and Shivam. Um, yeah, of course. And the anchors, you guys can take it over. Congratulations, guys. Sir, there is only one Yashraj, sir. Me, sir. Okay, congratulations, all of you. Sir, have you sent the form? Yes, we will share the link shortly. With this, we come to the end of this amazing and insightful 3-day workshop. Thank you, sir, for having a wonderful session. The session helped us gain a lot of information and helped us understand the concepts of DSS so well. The quiz was amazing. We can see the enthusiasm of the attendees. So thank you for getting all the doubts and queries answered. We also thank the faculty members who have joined for gracing us with their presence. Thank you for supporting and being there with us throughout. We would also like to thank the attendees who joined in today. Thank you, everyone, for being such a great audience. Before leaving, a kind reminder to fill out the feedback form link and the attendance form. On the basis of the information we get from these forms, we shall be sending out the certificates. So fill out these forms carefully. The feedback form link is in the chat box, so do fill it out. With this, we come to the end of this 3-day workshop. So I, Anushka, And I, Utkarsh. sign off for the day. Stay safe and keep learning. To attend more such insightful events and workshops, follow us on our social media handles on Instagram, Twitter, Facebook, and LinkedIn, the links for which are provided in the chat box. Thank you, everyone. Thank you, everyone. The feedback form link is in the chat box. I'll send it again. Akshat. Today, guys, you only have to fill the feedback form. Okay. Thanks for joining us today.